I would like to good morning, Honorable Director Sir, Ma'am, my dear teachers and friends and students. Before starting our Republic Day celebration, I would like to beg pardon. I would like to say you sorry because of technical fault we have been late. Now, you all are aware that it's Republic Day today, and on this occasion, I would like to congratulate you all because you all have the equal right in Indian Constitution, which was adopted on this day in 1950. Madam has also come, so I would like to welcome her and congratulate her also on this great occasion. So now, I would like to tell you that today is Republic Day celebration, and hoisting of national flag will be done by our respected principal sir, Mr. Vikas Kumar Sinha. And within few moments he is going to hoist our national flag. Till then, all of you have to wait, and after hoisting the national flag, as you all are aware that we have to sing the national song and lots of programs are also here. So we have to make ourselves prepare. So now I would like to invite Aryan sir to tell you another programs related to this one. Aryan sir, please. Thank you so much, sir. First of all, Happy Republic Day to all. As you all know, today is 26th of January, the 72 Republic Day celebration. As we all know, today we get late. So without any delay, first of all, I would invite our respected principal, Mr. Vikas Kumar Sinha sir, to hosting the flag. At that time, please everybody be in the positions, be straight. Please. मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Our principal sir has hoisted our national flag, and after this one program, we have another program also. So now, for more information about those programs, I would like to invite Aryan sir once again to tell you about those programs. Thank you. Thank you, sir. For this great moment, I would like to say
संस्कार, संस्कृति और शान मिले, ऐसे हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले। रहे हम सब मिलकर ऐसे कि मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में भगवान मिले। So now there is a very limited program, and without any delay, once again I would like to invite our respected principal sir, Mr. Vikas Kumar Sinha, to say something on this great moment, on this great celebration. So, Mr. Vikas Kumar Sinha, sir. A very heartily thank you to Mr. Aryan sir, and I really thankful to the director ma'am, and in the absence of director sir also thankful to you, and I never forget you all, dearest student. A very nice good morning to all of you. As you all know, we are going to celebrate the 72th Republic Day anniversary. So I'm not taking the long time because we have to already delay here, but I have to deliver some points according to you. As you all know, every year the government, the institution, any types of the sector have want to introduce about the achievement. Now this time I also want to introduce our achievement, our institution achievement. This is the big point about, as you all know, we all have to be suffer the COVID-19, and now later in this time we all have to be come here and attend the part, the Republic Day. But I have to share a big point among to you. जैसा हम सभी जानते हैं कि कोरोना का ऐसा संकट था जिसमें कि कई सारे संस्थाएं हमारे बंद हो गई। कई सारे संस्थाओं ने अपने कर्मचारियों को, अपने सहयोगियों को इस चीज़ों से हटा दिया, जहां पर कि उन्होंने कहा कि हम आपका सहयोग नहीं कर सकते। लेकिन हम अपनी चीज़ों को अगर गिनाएं तो हमारे संस्था के जो संस्थापक हुए, उन्होंने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। ना सिर्फ हमारा बल्कि हमारे बच्चों का भी साथ नहीं छोड़ा। और उनका एक बहुत ही मेरे द्वारा ये लाइन बनाया गया है, लेकिन ये संदेश लगभग डायरेक्टर सर और डायरेक्टर मैम का है, जो मैंने कुछ इस तरीके से बनाए हैं। ये पंक्तियाँ लॉकडाउन के समय की मैंने कुछ लिखी थी। एंड आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग टू द टीचर, नेवर माइंड इट, एंड especially to ma'am, this line is for myself. मेरे लाइन कुछ इस तरीके से थे कि कोरोना का प्रभाव, शिक्षा का अभाव, कोरोना का प्रभाव, शिक्षा का अभाव, इसी चीजों को देखते हुए एक लाइन थी, कम खाएंगे मगर सब खाएंगे, कम खाएंगे मगर सब खाएंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे। कम खाएंगे मगर सब खाएंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे, और साथ चलते हुए शिक्षा का ये उजाला सभी तक पहुंचाएंगे। कहने का मतलब कि जहां हर इंस्टीट्यूशन ने सभी चीज़ों का साथ छोड़ दिया, कहा कि हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि हम अपने कर्मचारियों का सहयोग कर सके, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने कर्मचारियों का साथ छोड़ दिया, वहीं पर हमारे इंस्टीट्यूशन ने किसी भी चीज़ों में पीछे नहीं रहे। अगर शुरुआत की बात की जाए तो जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहला हम लोगों ने मास्क वितरण किया था, जिसमें अंजू माड़ा मैम ने हमारा सहयोग किया, और ये सारे चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे संस्था के संस्थापक के द्वारा ही संपन्न हुआ। इसके बाद एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया
ये दर्शाता है कि हम सिर्फ एक संस्था नहीं चलाते हैं, हमारा एक परिवार है जो कि हम संस्था के सदस्यों के लिए और बच्चों के लिए सोचते हैं। पहले संस्थापक के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि कक्षा 9th 10th के बच्चों का 2 माह का फीस, उससे नीचे वाले बच्चों का 4 माह का फीस और फिर प्राइमरी सेक्शन वाले बच्चों का 5 माह का फीस माफ किया गया। जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसा कोई भी संस्था नहीं था जिन्होंने फीस के ये चीज़ें माफ करने का फैसला लिया हो। इससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए अभी ये फैसला जारी ही था कि इससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए हमारे डायरेक्टर सर ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वैसे बच्चे जो कि हमारे विद्यालय से किसी भी प्रकार से संपर्क में नहीं है, उनकी पूरी माह की फीस माफ कर दी गई। तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा संस्था है जो कि इस तरीके की सोच रखता हो? ऐसा ये मैं प्रचार करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये चीजें बतलाने के लिए कह रहा हूँ कि हम जिस सीपीएस में हैं वो सिर्फ हमारे प्रोफेशंस को ही नहीं देखता है, हमारी चीज़ों को ही नहीं देखता है, बल्कि हमारे ओवरऑल चीज़ों को देखता है और हमें बिल्डअप करके आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और हमें गर्व होता है कि हम इस परिवार से जुड़े हुए हैं, जहां आए दिन संस्था से कर्मचारियों का हटाया जा रहा है। आज हम लगातार सीपीएस का 5वां ब्रांच का लगभग उद्घाटन होने जा रहा है अनीसाबाद में, और इस ब्रांच के लिए हम लोग कर्मचारियों का चयन भी कर रहे हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धता है। और ये उपलब्धता सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है, ये कहीं ना कहीं संस्था के संस्थापक के द्वारा भी है, तो इसका पूरा श्रेय हमारे शिक्षक और हमारे बच्चों के द्वारा भी जाता है। एक और उपलब्धि को मैं गिनाते हुए अगर कहूँ तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा हमारे 5 बच्चों को उप विजेता के रूप में पुरस्कृत किया गया। मैं उन बच्चों का नाम भी बतलाना चाहूंगा, जिसमें कि मेहर फातिमा, राशिका, जैनब, एजैन और शिवा, आई थिंक सो। ये कुछ 5 बच्चे थे जो कि जिनको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा चयनित कर उप विजेता के रूप में सम्मानित किया गया। और हमारे शिक्षक भी इससे पीछे नहीं है। हमारे शिक्षक में रविशेखर सर, आर्यन सर और दीपक सर, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में उप विजेता के रूप में चयनित हुए, और हमारे स्कूल को, हमारे विद्यालय को ये मौका दिया कि हम भी अपने उस कंपटीशन के रूप में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा फुल सपोर्ट बच्चों द्वारा, हमारे शिक्षक के द्वारा, और एक कहावत ही कहा गया है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो भाई जैसे हमारे संगत हैं, हमारे एक माता पिता के रूप में हमारे संस्थापक जो मौजूद हैं, जो कि हर चीज़ों को अच्छे तरीके से देखते हैं, अच्छे तरीके से मार्गदर्शन करते हैं, तो ये संगत के रूप से तो हमें गुण आएगा ही। हमारा तो गुण जाने का कहीं कोई रास्ता ही नहीं है। तो इसके लिए हम बहुत ही बड़े आभार व्यक्त करते हैं डायरेक्टर सर का और डायरेक्टर मैम का, और इस प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए जो भी हमारे शिक्षक इसमें अपना पूरा योगदान दिए, और समस्त महिला शिक्षक जो कि इस कोरोना काल में भी अपने योगदान को कभी नहीं भूली, पूरे तरीके से योगदान दिया, उन सभी का मैं अभिवादन करता हूं। और गणतंत्र दिवस समारोह को बहुत बहुत आप लोगों का बधाई देता हूं। धन्यवाद। आर्यन से Thank you, Principal Sir. Thanks to you for your precious opinion and a great speech delivered on this occasion, signifying the importance of schools and in school and the management. On this occasion, first of all, I would like to tell that this one day we had got after the
great industry of our great leaders. Those were Mahatma Gandhi, Rajendra Prasad, Bhim Rao Ambedkar, and Bhim Rao Ambedkar. The credit goes to Bhim Rao Ambedkar, who built this constitution. And you all know that our constitution is the biggest constitution and had taken 2 years, 11 months and 18 days. It's the biggest written constitution of the world. It means that there are lots of things in our constitution which is the mingling of approx all the constitution of the world. You will have listened the word proposition and source. Proposition and source means sadhan and sadhya. So our constitution, not only our constitution, but during this epidemic, our school, whether you are our school especially, I would like to talk about our school. In spite of not having the source, we have, whether you talk of management or teachers, all of we have showed our proposition. Proposition means sadhya. Whether you are having source or not, it doesn't matter. Matter is that you are having proposition or not, and proposition is the most important thing for development, and we have done so. Everybody has done so. Now, so it's the time. I would like to call now to our teachers to give their precious view. I would like to call our Hindi teacher, Mr. Pandey sir, to give his precious opinion on this occasion. Mr. Pandey sir, please come on the stage. धन्यवाद मिश्रा सर, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर मैम, प्रिंसिपल सर, टीचर्स और यहाँ उपस्थित कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल के बच्चों। आज 72वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये बहुत ही पावन दिन है जब हमारे देश के मनीषियों ने हमें एक लिखित संविधान हमें सौंपा। उन मनीषियों को आज याद करने का और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का। हम अक्सर जो है अपने जीवन में अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, हर बात में करते हैं कि ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसके साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। आप छात्र हैं, आने वाले समय में आप देश के निर्माता बनेंगे, तो ये खास संदेश है आपके लिए कि आप जो है जहां भी जाएं, अपने जीवन में जितनी भी तरक्की करें, इस बात को जरूर याद रखें कि भारतीय संविधान ने हमें कई तरह के अधिकार दिए हैं, तो उसके साथ हमारा कुछ कर्तव्य भी बनता है। उससे भी हम पीछे न रहे, अपने कर्तव्यों को भी निभाएं, क्योंकि अधिकारों के साथ अगर कर्तव्य न जुड़ा हो तो फिर वो बात अधूरी रह जाती है। बहुत लंबा चौड़ा भाषण मैं नहीं देना चाहता और मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और एक नारा मैं लगवाना चाहता हूं आप सभी बच्चों से और आदरणीय शिक्षक गण से कि
आप जो है अवश्य ये नारा लगाएं, लगना भी चाहिए आज के दिन। जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे, जय हिंद। Thank you, Pandey sir. Now, after Pandey sir, I would like to call Mr. Anuj sir to give his precious opinion on this occasion. Mr. Anuj sir, please come on the stage. Good morning, Director sir, Director ma'am, Principal sir, teachers and our students. We are going to celebrate 72 January 72 Gantantra Divas. It means, as we know, that in all over India we are celebrating our 72 Republic Day, and from 1950 we are celebrating in this day as Republic because the Constitution of India came to force on this day in 1950. This day remind us our freedom struggle and our great freedom fighters of our country sacrificed their life to get us Purna Swaraj. It's because of their struggle that today we are living in democratic country where each citizen has right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom and religions, culture and educational rights, right to constitutional demand. Today is the day of reform. Our commitment to unity is diversity, fairness and equality among all citizens. So these words I would like to finish my speech. Thank you very much. Thank you, Anuj sir. Now, after Anuj sir's precious speech, I would like to call the teacher, perhaps whom you too have been waiting for. Mr. Ravi sir, please come on the stage. Mr. Ravi sir. First of all, thank you, Mr. Sir, to giving an opportunity to say something in front of all of you. First of all, Honorable Director Ma'am and Director Sir, scholar teachers and my dear students, a reverence morning to all of you. मैं आज अपने शब्दों का शुरुआत एक शब्द से करना चाहता हूँ। जब गांधी का स्वप्न सत्य बना, जब गांधी का स्वप्न सत्य बना, तभी देश गणतंत्र बना। गणतंत्र की एक ही बात है, खूबी एक ही खूबी है। देखिए, आज मैं जो कुछ भी बोल पा रहा हूँ, हमारे शिक्षागण जो कुछ भी बोल पा रहे हैं, चाहे अगल बगल आप जो भी सुन रहे हैं, ये गणतंत्र है तभी हम बोल पा रहे हैं। अगर हम परतंत्र होते तो हम बोल नहीं पाते। और किसी भी एक मुद्दे पे हम सभी का विचार अलग अलग होता है, क्योंकि विचारों का तो कोई दायरा होता ही नहीं है। टुडे वी आर सेलिब्रेट 72nd रिपब्लिक डे। आज हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस के पीछे क्या बात थी? आज़ादी तो हम लोगों को 15 अगस्त 1947 में मिल गया। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि हमें एक रिपब्लिक कंट्री होना चाहिए? ऐसा क्या बात हुआ था कि हमें एक रिपब्लिक कंट्री होना चाहिए था? आप में से किसी कोई आइडिया, कोई मुझे जवाब दे सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं? आज़ादी तो हमें मिल गई, हमारे देश में नेताओं ने मिलकर सरकार भी बना लिया, 3 साल बढ़िया सरकार भी चली, है ना। 1950 में गणतंत्र दिवस हम लोगों ने अपने आप शामिल किया, वी आर रिपब्लिक ऑन दैट डे। तो बताइए, इन 3 सालों में तो देश अच्छे से रन कर रही थी, तो क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें एक रिपब्लिक कंट्री भी बनना पड़ा? एनीवन? Sir, please come here. Sir, please come here and say the answer in front of the student.
So good morning to all of you. Good morning, respected Madam Director, Madam, all the teacher and children. So actually we don't have a law, rules in our constitution. So that's why we need to make a strong, concrete constitution in India so that we could just become a sovereign country. That's why, that's why we celebrate Republic Day to just give the honor and respect the constitution of our country. Absolutely right. And also, Vivek sir wants to give the answer of the same question. So I am calling Vivek sir. Please come, sir. 26 जन को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अडॉप्ट किया, क्यों अब गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? 26 जनवरी 1923 ये वो डे था जब हमने फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। और ये जो इंडिपेंडेंस था एक्चुअली में नहीं था, हमें नहीं मिल गया था, ये एक सिंबॉलिक था। हमने डिमांड रखी थी पूर्ण स्वराज, कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए ही चाहिए, इससे कम कुछ नहीं चलेगा। और उसी के लिए हमने ये 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर दिया, स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया। बट 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हो गए। अब क्या होगा? अब तो ये पवित्र दिन हम देशवासियों के लिए कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए हमारे लीडर्स ने सोचा कि ये जो पवित्र है इसकी पवित्रता को बनाए रखनी बहुत ज़रूरी है। तो एक काम करते हैं, माना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया, कोई बात नहीं, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे 26 जनवरी को, ताकि इस दिन का जो इम्पोर्टेंस है वो हमेशा हमारे दिलों में बना रहे। थैंक यू। आई एम टोटली एग्री विथ विवेक सर। सीधे और कम शब्दों में इतना ही कहना चाहता हूँ, हम गणतंत्र हुए तभी हम अपने संविधान को सर्वोपरि रख सकते हैं। एक देश की महत्व बहुत ज़्यादा होती है, पर याद रखिए एक देश तभी देश बनता है जब उसका एक संविधान होता है। तो कहने का मतलब हम अपने संविधान को अच्छे से फॉलो करें और इसे माने। जैसा कि पांडे सर ने कहा था कि संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी देश के प्रति दिए हैं जिसे हमें निभाना है। तो कुल मिलाकर बात यही रही। कुछ 2-4 लाइनें हैं मैं जो सुनाना चाहता हूँ आपके सामने। जरा नमन करो उन वीर सपूतों को जिन्होंने हमें कमी में जीना सिखाया। मैं यहाँ उनको वीर सपूत कर रहा हूँ जो आज़ादी के संघर्ष में लड़ रहे थे। जरा नमन करो उन वीर सपूतों को जिन्होंने हमें कमी में जीना सिखाया, त्याग और बलिदान का हमें पाठ पढ़ाया, देशभक्ति की राह पर अमर होकर देश से प्यार करना सिखाया। नमन है उन्हें जिन्होंने हमें यह याद दिलाया, देश के लिए जियो देश के लिए मरे, हमें यही है बताया। आज कुछ टेंथर्स भी हमारे सामने हैं और इस साल ये लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो अब टेंथर्स के लिए मेरे 4 लाइन डेडिकेटेड है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। जवानी है जोश का नाम, जवानी है जोश का नाम, समुद्र में भी रास्ता बना लेते हैं। अगर हौसला हो हिम्मत के साथ तो तली से भी मोती ढूंढ ले आते हैं। थैंक यू। Thank you, Ravi sir. Now, after Ravi sir, I would like to call our assistant teacher, Mr. Vivek sir, to come on the stage to deliver his speech. Mr. Vivek sir. ऑनरेबल डायरेक्टर सर एंड डायरेक्टर मैम एंड माय सेवियर्स फैमिली जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, एंड आर्यन सर, अमन सर, मतलब इन लोगों के साथ में रह के लगता नहीं है कि कुछ अलग है। नया हूँ मैं पटना में आया, एकदम मुझे अपना सा बिल्कुल फील होता है। रवि सर से एकदम बड़े भाई जैसी फीलिंग होती है। और एक साल से तो बाकी जो मिडिल सेक्शन और जूनियर सेक्शन के टीचर्स हैं उनको मिल नहीं पा रहे हैं, बट ये भरोसा है कि जब भी हम लोग मिलेंगे तो फिर से वही प्यार, और ये जो प्यार है बहुत बढ़ेगा। यहाँ मैंने टर्म यूज़ किया है प्यार, क्यों यूज़ किया? बेसिकली इसलिए यूज़ किया है कि एक फैमिली, एक परिवार जो होता है बिना प्यार के चल नहीं सकता। और ये देश भी तो हमारा एक परिवार ही है। जैसे परिवार के अंदर कोई छोटा बड़ा होता है, पापा मम्मी होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनकी नीड्स अलग अलग होती हैं। उसी तरह से ही हमारा देश
भी हमारा एक परिवार है, जहाँ पे हम सब का, चाहे भाषा अलग हो, धर्म अलग हो, कास्ट अलग हो, कुछ भी हो, लेकिन वो एक चीज हम लोगों के अंदर जोड़ती है, वो चीज है हमारी भारतीयता, कि हाँ हम एक फैमिली है। और ये गणतंत्र दिवस, ये रिपब्लिक डे उस चीज को दिखाता है कि हम लोग एनार्की के अंदर अब सर्वाइव करने वाले नहीं रहे। हम लोग एक रूल, एक रेगुलेशन बनाकर रहेंगे, जहां पर इस प्यार का, इस देश का जो प्यार है वो और बढ़ेगा, ताकि विश्व गुरु हम एक बार फिर से बन सके। और जैसे पता है, एक बच्चे ने पूछा था कि हम लोग कब विश्व गुरु बनेंगे, भारत आखिरकार कब एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगा। तो वो दिन भी जरूर आएगा जब हम लोगों के अंदर जो प्यार है वो फिर से बढ़ जाएगा। क्लास के अंदर मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था, रोमांटिक नेशनलिज्म। तो एक बच्चे ने पूछा था, सर ये रोमांटिक नेशनलिज्म के अंदर कविताएं किस तरह से होती है। तो मैंने अभी कोशिश किया है कि उस तरह का एक कविता आपके सामने पेश कर सकूं। अगर कुछ गलती हो तो प्लीज सॉरी है, पहले ही मांग रहा हूं, ठीक है। तेरे बाहों के आगोश में, तेरे बाहों के आगोश में जो सुकून है ए मादरे वतन, तेरे बाहों के आगोश में जो सुकून है ए मादरे वतन, कायनात में वो और कहां। तेरी मिट्टी की जो खुशबू, तेरी मिट्टी की जो खुशबू में सादगी है ए मेरे मादरे वतन, तेरी मिट्टी की खुशबू में जो सादगी है ए मेरे मादरे वतन, वो कहीं और कहां। सिंधु से निकली गंगा का वो प्यार, सिंधु से निकले गंगा का वो प्यार, तेरे चरणों को छू लूं फिर मुझे कोई और कहां काम। तेरे दुल्लार में पली मगध सभ्यता फिर कहां, सातवाहन हड़प्पा और अहोम, सातवाहन हड़प्पा और अहोम में खेलती वो पावन निशा कहां। तेरे जुल्फों को सवारते वो अखंड हिमालय कहां, ए मेरे मातृ वतन, तेरी बिंदिया की तरह वो इंद्रप्रस्थ और कहां। ए मेरे मादरे वतन, तेरे बिना अब मुझे चैन कहां। तो इसी कविता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। एक बार हम फिर से बोलते हैं, वंदे वंदे जय हिंद। Thank you, Vivek sir. Many teachers have given his opinion on this occasion, but I think that we have become inactive, something perhaps. So I would like to call Nitish Kumar of class 9th C. Nitish Kumar of class 9th C. To make you listen jokes. Nitish Kumar. Good morning to all of you, respected director sir, principal ma'am and principal sir and my teachers, my dear friends. बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, सलमान को केस पसंद है, मोदी को विदेश पसंद है और मुझे मेरा देश पसंद है। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। तैरना है तो समुंदर में तैरो, तैरना है तो समुंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है, प्यार करना है तो वतन से करो, इस बेवफा लोगों में क्या रखा है। एक दिया उनका नाम का भी रख लो पूजा की थाली में, एक दिया उनका नाम का भी रख लो पूजा की थाली में, जिनकी सांस थम गई भारत माता की रखवाली में। मोहब्बत के हर रास्ते में दर्द ही दर्द मिलेगा, मैं सोच रहा हूँ उस रास्ते पर मेडिकल खोल लूं मस्त चलेगा।
पत्नी, तुमने कभी मुझे सोना, हीरा या मोती गिफ्ट नहीं दिया। पति ने तुरंत एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर पत्नी के हाथ में रख दिया। पत्नी, ये क्या है? पति, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। पत्नी एक जोर का थप्पड़ गाल पर जड़ दिया और बोली, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। पढ़ाई छोड़ के सब खेल रहे हैं आजकल पबजी, पढ़ाई छोड़कर खेल रहे हैं सब आजकल पबजी। बाद में नौकरी नहीं मिलेगी तो बेचेंगे सब्जी। शुक्र है व्हाट्सएप हिंदी में नहीं है, शुक्र है व्हाट्सएप हिंदी में नहीं है, वरना लास्ट सीन अंतिम दर्शन कहलाता। तू फेसबुक की रानी, मैं हाइक का राजा। तू फेसबुक की रानी, मैं हाइक का राजा। मिलना है तो व्हाट्सएप पर आ जा। टीचर, तुमने कभी नेक काम किया है? आसिफ, हाँ सर, एक बुजुर्ग आराम से घर जा रहा था, मैंने उसके पीछे कुत्ता लगा दिया, जल्दी घर पहुंच गया। लड़की, मैं अपने पापा की परी हूँ। लड़का, मैं भी अपने पापा का परा हूँ। लड़की, परा ये क्या है? लड़का, मुझे देखते ही उनका परा चढ़ जाता है। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था। मच्छर ने आपको ये काटा, उसका जुनून था। वाह वाह, फिर आपने वहां खुजाया, ये आपका सुकून था। पर चाह कर भी आप नहीं उसे मार पाए, क्योंकि उसकी रंगों में आपका ही खून था। यह है खून का रिश्ता। एक तो मुस्कुराते भी खूब हो, फिर दूसरा शर्माते भी खूब हो। दिल तो चाहता है आपको रिपब्लिक डे के अवसर पर दावत बुलाऊं, मगर सुना आप खाते भी खूब हो। हस्बैंड ने ऑफिस में बैठे बैठे फेसबुक पर पोस्ट किया, पक्षी बनो उड़ता फिरता मस्त गगन में। तभी वाइफ का कमेंट आया, धरती चुमते ही सब्जी लेते आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेगा तुम्हारे चवन में। पत्नी, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे 1 महीना आराम के लिए पेरिस और गोवा जाने को कहा है, हम कहाँ जाएं? पति, दूसरे डॉक्टर के पास। सोचो, अगर डॉक्टर फिल्म बनाते तो फिल्म का नाम क्या होता? पहला, कभी खांसी कभी जुकाम, कहो न बुखार है। दूसरा, टीवी नंबर 1। तीसरा, हम खून दे चुके सनम। 4, दिल तो कमजोर है जी। 5, एक हसीना 2 किडनी। 6, अजीब मरीज की गजीब बीमारी। एक छोटी सी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, सीख हम लोग को देखती है, मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ। संस्कार बता देती है परिवार कैसा है, बातचीत बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नजर बता देती है चरित्र कैसा है, ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है, स्पर्श बता देता है नियत कैसी है, विनय बता देता है शिक्षा कैसी है, मुश्किल बता देती है हौसला कैसा है, और वाणी बता देती है स्वभाव कैसा है। थैंक यू। After an entertaining break by Nitish, I would like to call Abhishek sir to keep his view before us. Abhishek sir. Thank you very much, sir. Good morning, respected Director Ma'am, all teachers and children. So today we have gathered here for celebrating the 72nd Republic Day, which came into exist in 1950. Actually, we just gather here for paying the respect or honor to our Constitution. So, and this is the day that India declared the Purna Swaraj, as one of our respected sir told us. So this is a great day. So we should proud our Constitution and be proud ourselves also that we are the Indians. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.
Thank you, sir. Now next, I would like to call Mr. Nikhil, sir. Mr. Nikhil, sir, please come on the stage. Good morning, all of you. Today, I am going to deliver a poem. Why I am delivering this poem, I will let you know later. ठीक है? आज मैं एक कविता बोलूँगा जो कि मनोज मुंतासिर का है, मेरा कविता नहीं है, पहली बात. ठीक है? मनोज मुंतासिर ने कुछ इस अंदाज में कहा है, साइंस कहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सह सकता शून्य के नीचे और 50 के ऊपर का तापमान. साइंस कहता है दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सह सकता शून्य के नीचे और 50 के ऊपर का तापमान. शून्य के नीचे हड्डियां चटक जाती हैं और 50 के ऊपर मांसपेशियां पिघल जाती हैं. शून्य के नीचे हड्डियां चटक जाती हैं और 50 के ऊपर मांसपेशियां पिघल जाती हैं. तो फिर ये कौन है जो ग्लेशियर पे -30 डिग्री सेल्सियस पे भी तिरंगे के तार कस रहे हैं और बाड़मेर में 52 डिग्री सेल्सियस पे भी ठहाके मार के हंस रहे हैं. ये कोई हार्ड मास के पुतले नहीं हो सकते, ये तो कोई यक्ष या देवदूत होना चाहिए. फौजी भी भगवान के भेजे हुए एक फरिश्ते हैं, तुम्हें इसका और कौन सबूत चाहिए. आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबसे पहले हम लोग एक प्राउड इंडियन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर द प्राउड इंडियंस. और दूसरी बात, हम लोग एक प्राउड बिहारी भी हैं. ठीक है? प्राउड बिहारी इसलिए मैंने बोला क्योंकि बिहार में 2 अवार्ड मिले हैं आज के दिन प्रेसिडेंट के द्वारा. सबसे पहला अवार्ड मिला है संतोष बाबू कर्नल, जो कि जवाहर घाटी में वहां पे उन्होंने एक अद्भुत अपना करिश्मा दिखाया और उन्होंने ये अवार्ड पाया, संतोष बाबू. दूसरी थी ज्योति कुमारी, जो कि एक लड़की थी 13 साल की. उसने पैंडेमिक के समय अपने जो हैंडीकैप जो पिता थे उसको 1200 किलोमीटर साइकिल में बैठा के ले गई थी. इन दोनों को ले गया है और ये दोनों ही कोई बिहार से हैं. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. Now next one, teacher Farhana ma'am. I would like to call Farhana ma'am. Please come on the stage and deliver his speech, please. Farhana ma'am, please. Awam, good morning to all of you. I am Farhana Khatun before you. I am very thankful to you that you have given a nice opportunity to present in my views among you. The caption of my speech is Republic Day. Republic Day means that the people of the country have the right to elect their political leaders for country development. As the citizen of the country, we too are responsible for its development. Our country became free from British rule on 15th August 1947, but the Constitution came into force on 26th January 1950, so that we celebrate every year as Republic Day. This is the day to remember our great freedom fighters like Gandhi Ji, Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, and many more leaders who sacrificed their lives for freedom of our country. So let us all take an oath today to work hard for our country development. Ask not what your country can do for you. Ask not what your country do for you. Ask what you can do for your country. एक शेर, मैं भारत की कुछ इस तरह शान लिखूं,
मैं भारत की कुछ इस तरह शान लिखूं, एक तरफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और मुसलमान लिखूं, और कभी लिखना पड़े एकता और अमन का पैगाम, और कभी लिखना पड़े एकता और अमन का पैगाम, किताब के हर सफ़े पे मुल्क हिंदुस्तान लिखूं। फ्रीडम इन माइंड, faith in words, pride in our heart, memories in our soul. Let's salute the nation. Happy Republic Day. That's all. Thank you. Thank you, Farhana ma'am, for your precious speech before all the awam. Now, next one, I would like to call our respected ma'am, Anjum ma'am. Anjum ma'am, please come on the stage and deliver your opinion before our students so that they might be beneficial from your opinion. Anjum ma'am. Thank you, DK Misra sir. Good morning, everyone. आदरणीय शिक्षकगण और हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज 26 जनवरी है, आज हमारा गणतंत्र दिवस है। ये वो दिन है जिसका नाम सुनते ही, इस दिन की याद आते ही हम सभी के मन में देश के प्रति अपार स्नेह प्रेम की भावना जागृत हो उठती है। आज हम 72वें गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी रिपब्लिक डे। ये रिपब्लिक को हम हिंदी में गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र का अर्थ होता है, गण का अर्थ हुआ लोग और तंत्र का अर्थ हुआ सिस्टम, है ना। तो ये गणतंत्र जो व्यवस्था है, ये किसी भी देश के लिए लोगों, यहाँ देश जो है वो जनता की है और सरकार जो है वो भी जनता की है। इस सिस्टम को बहाल करने का सबसे बड़ा माध्यम है लोकतंत्र, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इस गणतंत्र के विषय में कहा है, ये जो शासन व्यवस्था है ये लोगों के लिए और लोगों के द्वारा है। और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारा जो लोकतंत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब मैं 2-4 लाइन आप लोगों को कुछ सुनाना चाहती हूँ। एक दिन ही सही शहादतों के नाम कर लेना, एक दिन ही सही शहादतों के नाम कर लेना, मिले कभी जो भारत माता उन्हें प्रणाम कर लेना, मुमकिन हो अगर राजगुरु और आजाद सा काम कर लेना, करनी हो जब मांग किसी से देश में अमन और शांति की मांग कर लेना, रहे ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में भेदभाव, तुम दिवाली को ईद और क्रिसमस को रमजान कर लेना, एक दिन ही सही शहादतों के नाम कर लेना, मिले जिंदगी में आखिरी सांस तक वंदे मातरम के गुणगान कर लेना। जय हिंद, जय भारत। Thank you, ma'am. Now, after Anju ma'am, I would like to call our respected ma'am, Miss Farjana ma'am. Farjana ma'am, please come on the stage and deliver your view before us so that we might take benefit of it. Farjana ma'am, please come on.
Thank you, DK Mishra sir. It's my golden opportunity. It's my golden opportunity given by the DK Mishra sir. I wish you very warm good morning and happy Republic Day 2021. Let us spend some time today in reflection of the true heroes of India who sacrificed their lives to give us freedom. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस यानी कि यौम जमहूरिया है। सभी लोगों को पता है कि आज हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी का दिन हमारे लिए मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में नहायत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दिन हमारे मुल्क का आइन नाफिज हुआ। इससे कबल हमारे मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क बना। बेशक इस दिन के लिए गांधी जी, मौलाना आज़ाद, अब्दुल गफ्फार जैसे अजीम रहनुमाओं की क़यादत में हज़ारों लाखों हिंदुस्तानी अवाम ने इम्तियाज़ मजहब व मिल्लत के परचम को बुलंद किया और अपनी बेमिसाल कुर्बानियों और इत्तेहाद व इत्तिफाक से अंग्रेज़ों से टक्कर ली। आओ मिलजुल कर चलो पहले ही काम करें, सब इखलास व मोहब्बत के चलन को आम करें। इसी अंदाज से हर दिल में उतरना होगा, काम भारत के लिए हमको ये करना होगा। अपने भारत को बुलंदी की तरफ लाना है और बहुत दूर तरक्की के लिए जाना है। और लास्ट में अपने देश के लिए कुछ 2-4 लाइन और बोलना चाहती हूँ। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Farjana ma'am, for your precious speech. Now, after Farjana ma'am, I would like to call Gulshan ma'am. I would like to call Gulshan ma'am. Please come on the stage and keep your view on this occasion. Happy Republic Day, all teachers and all students. मैं आप लोगों को एक छोटा सा शायरी सुनाना चाहती हूँ और ये ख़ास 10th के स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट और टीचर्स के रिलेटेड है, ठीक है। होठों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, होठों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, बीत गए फिर वो ज़माने नहीं आते। होठों पर उल्फत के फसाने नहीं आते, बीत गए फिर वो ज़माने नहीं आते। उस्ताद ही होते हैं शागिर्द के हमदर्द, उस्ताद ही होते हैं शागिर्द के हमदर्द, कोई फरिश्ते यहाँ साथ निभाने नहीं आते। और मैं एक आप लोगों के सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है ऐ मेरी प्यारे वतन। ऐ मेरी प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान।
तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस ज़बां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरी प्यारी वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरी प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम। जिस जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरी प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। थैंक यू। Thank you, Gulshan ma'am, for your melodious song before us. Now, after Gulshan ma'am, I would like to call Ruhi ma'am. I would like to call Ruhi ma'am. Please come on the stage. Ruhi ma'am. Good morning, everyone. Happy Republic Day. Everyone is aware that we are celebrating today Republic Day, 26 January, which the Constitution came into a force. A very happy Republic Day. A very happy Republic Day to all of you. I would like to speak few lines about today's auspicious day. Today is 26 January, 72 Republic Day for our country. This is a day to remember to sacrifice our freedom fighters whose effort gave us independence and created the Republic. India became independent on 15 August 1947 from British rule. However, the Constitution of India came into force on 26 January 1950. Since then, we celebrate Republic Day every year. Republic means that the citizens of the country have the right to elect our leaders as the country. A country has developed a lot after we get independence from British in 1947. But our country is also facing some problems like terrorism, inequality, unemployment, corruptions, etc. Let us also pledge today do our best in solving those problems and make our country the best country of the world. A few lines. Freedom is mine, faith in words, pride in our hearts, memories in our souls. Let's celebrate the nation. Happy Republic Day. Thank you, ma'am. Now I would like to call
Sazia ma'am, please come on the stage and deliver your speech or whatever you think you should. Thank you, Mr. Sir. Once again, good morning to all. Honorable Director Sir and Director Ma'am and all my respective teachers and dearest my loving students. Today, I am here for sing a song, Sandese Aate Hai. So let's sing. संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं तो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिल वाली ने, किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों में अधूरी बातों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं तो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। That's all. Thank you. Thank you, ma'am. Now, all our teachers, now turn comes of our students, though their turns ought to be in starting, but we thought that they might do better than us. That's why now here comes their turn, and I would like to call Shahnawaz Kazar from class 9th B. सुप्रभात। मैं मोहम्मद शहनवाज कैसर कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं आज आपके समक्ष गणतंत्र दिवस की चंद बातें कहने वाला हूँ और एक प्यारी सी शायरी के साथ शुरुआत करता हूँ। जनतंत्र का मान है गणतंत्र, देश के संविधान का शान है गणतंत्र, करोड़ों भारतीयों के लिए लिखा गया था जो वीर सपूतों की मेहनत का परिणाम है गणतंत्र।
मैं सलाम करता हूँ उन वीरों के जज्बे को जिन्होंने आज हमें इस आज़ाद देश में संविधान के साथ रहना सिखाया। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। क्या हमें उसी समय जीने की आज़ादी मिली? नहीं, कई नियम और कई कानून थे जो हमें नहीं मिले। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हमारे देश में लागू हुआ। ये संविधान पहले भी बन चुका था, लेकिन 1930 से हम लोग पूर्ण स्वराज के लिए 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्र दिवस मनाते थे। इसीलिए जब हमारा संविधान पूर्ण हुआ तब 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस यौम जमहूरिया मनाते हैं। हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लेकर तैयार हुआ। इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। इसके साथ हमारे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। विकसित होता राष्ट्र हमारा, रंग लाती हर खुरबानी है, फक्र से अपना परिचय देते हम सारे हिंदुस्तानी, हम सारे हिंदुस्तानी। एक बार एक व्यक्ति ने अब्दुल कलाम साहब से पूछा कि हमारे देश की ताकत और हमारे देश की कमजोरी क्या है, तो उनका जवाब था आज के यूथ, युवा, नौजवान। अगर हमारे देश के नौजवान अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो हमारे देश का आने वाला भविष्य बहुत अच्छे हाथों में होगा। अगर वो धर्म, जात पात के नाम पर बट जाएंगे तो हमारे देश में आए दिन दंगे फसाद होंगे। आज हम इस मुकाम पर हैं जहां हम विकसित हो रहे हैं, लोग हमें जान रहे हैं। हमारा नाम जल, थल और अंतरिक्ष में ऊंचे पैगाम पर है। हमारे जल थल सैनिक हमारी रक्षा करते हैं। जिस रात हम सोते हैं उस रात वो जागकर अपने जान पर खेलकर हमारी रक्षा करते हैं। विकसित होता राष्ट्र हमारा, रंग लाती हर खुरबानी है, फक्र से अपना परिचय देते हम सारे हिंदुस्तानी हैं। आज हम जात पात के नाम पर लड़ते हैं, धर्म के नाम पर लड़ते हैं। अगर लड़ना ही है तो जाकर सीमा पर लड़ो, जहां असली ताकत का पता चलता है। वहां आम लोगों की बात नहीं है जो वहां लड़ते। उन लोग वो तो जाते हैं खाकी पर, आते हैं तिरंगे पर। सलाम है उनके जज्बे को जो तिरंगे को अपना कफन मानते हैं और वतन को अपना सनम मानते हैं। वतन से प्यारा कोई सनम नहीं, वतन से प्यारा कोई सनम नहीं और तिरंगे से प्यारा कोई कफन नहीं। कई राजा, कई महाराजा, कई बादशाह आए, सोने में लिपट कर चले गए, पैसों में लिपट कर चले गए, और हमारे देश के सिपाही, वीर सपूत जो नंगे आते हैं पर जाते हैं तिरंगे में लिपट कर, उनकी शान ही अलग होती है। मरना तो सबको एक दिन है क्योंकि वो विधि का विधान है। अगर जो हम मरते हैं वो हम गुजर जाते हैं, लेकिन जो वो वीर सिपाही मरते हैं वो सदा के लिए अमर हो जाते हैं, सदा के लिए अमर हो जाते हैं। मैं इसी चंद बातों के साथ हैप्पी रिपब्लिक डे कहते हुए अपने भाषण को खत्म करता हूँ। थैंक यू। Now the next speech from Rasika Kaisar. Rasika Kaisar from class 10th. Oh, sorry, song. Next program is song from Rasika Kaisar. Rasika Kaisar along with her friends.
ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। ऐ मेरी ज़मी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। ऐ मेरी ज़मी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द से। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो 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 भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो 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 हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा। थैंक यू। Now before calling the next participant who is going to deliver his speech, I would like to request our honorable teachers and as well as loving students to encourage our students. Thank you. Now next one turn is of Abdullah Suleiman from class 9th. Speech. Abdullah Suleiman from class 9th. And all of you are requested to encourage each and everyone. Good morning everyone, my respected teachers and all my dear friends.
I am Abdullah Salman from 9B, and today we are all gathered here for celebrating Republic Day. As we know, after a long struggle, we got freedom from the Britishers on the day 15th of August 1947. Then we need a constitution for running our country. And after 2 years, 11 months and 18 days, we got a constitution. As you can see, it was a long time. But today's politicians are destroying our constitution for saving their seats. As you can see today, before some days, there were some bills were passed in Rajya Sabha. Due to this, today more than 400 farmer organizations are protesting, but no leader is listening them. But no leader is listening their voice. Where are the leaders who said that किसान होने का मिलेगा सही अधिकार जब आएगी हमारी सरकार? Is our politicians, is our leader are sleeping, or is our leader forget our constitution? Instead of listening their voice, they are attacking on it. Is our politician forget the Article 19 1A right to protest, or Article 19 1C right to expression? All our politicians are sleeping. I only want to say that Republic Day is not about to sing songs and eat sweets and to give speeches. It is about to learn about our constitution and to save our constitution. Today we have a fault. That is, we are fight together on the name of religion. There was a time when our country was slave. We fight together for getting our country independent, for getting our country freedom. एक टाइम था जब देश के जवानों में एक नाम था, कोई भगत, कोई आज़ाद, कोई अशफाकुल्ला खान था। मजहब नहीं, मकाम था, न हिंदू मुसलमान था। क्या अच्छा समय वही था जब देश के गुलाम था। When we were slave, we were all Indians. कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करता था, लेकिन जब आज हम आज़ाद हैं तो हम धर्म के नाम पे लड़ते हैं। उर्दू के एक बहुत बड़े मशहूर शायर अल्लामा इकबाल कहे थे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। That's all. Thank you everyone for listening me. Now the next one participant is Ashif from class 9th C. Ashif from class 9th C. सुप्रभात आदरणीय प्रिंसिपल सर और मेरे सभी शिक्षकगण और मेरे सहपाठियों, आज मैं यहाँ आप लोगों को 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के बारे में हिंदी में स्पीच बताने के साथ साथ अपने भाव प्रकट करना चाहता हूँ। आज 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस। ये वो दिन है जब हर भारतीय के मन में देशभक्ति और लहर मातृभूमि के प्रति उपहार, स्नेह व सम्मान जग उठता है। मैं आप सभी को हमारे 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हैप्पी रिपब्लिक डे। रिपब्लिक क्या है? ये रिपब्लिक क्या है? ये गणतंत्र का अर्थ आप सभी को पता होगा। रिपब्लिक शब्द लैटिन शब्द रेस पब्लिका से बना है, जिसका मतलब लोगों से संबंधित, यानी इसके हिंदी रूप को हम समझे तो गण और लोगों मतलब तंत्र यानी लोकतंत्र। रिपब्लिक या गणतंत्र एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें लोग का तंत्र, सिस्टम यानी लोगों का तंत्र, सरकार लोगों की होती है और इस सिस्टम को बहाल करने का सबसे बड़ा माध्यम है लोकतंत्र, जिसे हम इंग्लिश में डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जिसे अब्राहम लिंकन ने बड़े सरल शब्दों में समझाया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। और हमें इस बात का गर्व है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। पर रिपब्लिक की जरूरत पड़ी क्यों? आप सभी ने एक सुपर 30 का ये डायलॉग जरूर सुना होगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था, चाहे वो उसके काबिल हो या ना हो।
लेकिन आज़ादी के बाद भारत को गणतंत्र देश बना दिया गया। लेकिन क्या कह देने से कोई भी देश गणतंत्र बन सकता है? नहीं, उसके लिए ज़रूरत होती है एक संविधान की, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन की। और इसलिए आज़ादी मिलने से पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसके 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। लेकिन इसके 26 नवंबर को लागू नहीं किया गया। इसके पीछे एक ऐतिहासिक तारीख 26 जनवरी रखा गया, क्योंकि इसी दिन हमारे कांग्रेस के नेता ने जाके लाहौर में आज़ादी का स्वतंत्र भारत का नारा लगाया था। लेकिन क्या हमारा देश पूरी तरह से गणतंत्र है? नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसका पालन आज भी नहीं किया जाता, जैसे बाल विवाह, बलात्कार करना और शराबबंदी। पुलिस तो हर जगह नहीं जा सकती, तो ये हमारा फर्ज है कि कहीं भी हम अगर गैर कानूनी शराब के ठेके और बाल विवाह होते हुए देखें तो पुलिस को ज़रूरी से इन्फॉर्म करें। लेकिन कई ऐसे भी कानून हैं जो हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन उसको रहना चाहिए। जैसे अगर किसी 18 साल बच्चा को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसके पूरे खानदान को जेल में बुला लिया जाता है, लेकिन अगर वहीं पे किसी भी 18 साल से छोटे लड़का को बलात्कारी साबित हो जाए तो उसे छोड़ दिया जाता है, जो ये कि बहुत गलत बात है। इसे हमारे संविधान में लिखा रहना चाहिए। और हम ही बच्चे आगे चल के भारत के भविष्य है, तो इन सब बातों के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। आखिर में मैं एक बार देश पर मर मिटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों को नमन करते हुए आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता का हर क्षण में सम्मान करता हूं, भारत माता का हर क्षण में सम्मान करता हूं, अपने देश की मिट्टी का मैं गुणगान करता हूं। है चाहत मुझ में वतन के लिए मर मिटने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। Well done. Now the next participant who is going to deliver her speech is Gulab Shah from class 10th. Gulab Shah from class 10th. Respected Director Ma'am, teachers and my friends, as we all know, we have gathered here for the Republic Day celebration. I am excited and glad to get a chance to say and share something about our country. This year we are celebrating 72 Republic Day of our country. We celebrate Republic Day on January 26th, the day when the Constitution of India came into effect. I am proud to be a citizen of India as it ensures the rights of each and every citizen's right to equality, right to freedom, culture, religion, etc. On this auspicious occasion, let's bow our heads towards the freedom fighters who have sacrificed their life for us. This is an occasion to reaffirm our commitment to unity in diversity, fraternity and equality among all our citizens. Today was the day when Dr. Rajendra Prasad has become the first president of India by replacing Lord Mountbatten. At last, I want to say a few lines. ए बंदे न हिंदू बन न मुस्लिम, ए बंदे न हिंदू बन न मुस्लिम, न भ्रष्टाचार का गुलाम, बस एक इंसान बन कुछ ऐसे कर्म कर कि खुद से कोई शर्म न हो। न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो बस एक छोटी सी बात का गर्व है, मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान में रहे। थैंक यू। Now, I would like to call
Vivek sir for plays. Vivek sir. Students, all the students are expected to stand and be attentive on their position, as well as teachers also. We are celebrating the day of our constitution. That's why we must work together in each and every arena of the day. Now, for please, our Vivek sir. किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसका जो बुनियाद हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, और ये बुनियाद स्ट्रॉन्ग हो सकती है संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से ही, क्योंकि वही एक मूल तत्व है, बेसिक एलिमेंट है जो हमारे अंदर संविधान के लिए, कानून के लिए इज्जत बनाता है। और इस संविधान का अगर हम बात करें तो हमारा संविधान है, इस संविधान के अंदर एक महत्वपूर्ण तत्व जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, ये वो सार है, वो ये समरी है जिसके अंदर हमारे संविधान का संपूर्ण तत्व समाहित होता है। तो आइए हम शपथ लेते हैं इस संविधान के इस संविधान और इसके महत्वपूर्ण आदर्शों को अपने हम दिलों से लगाए रखेंगे और अपने पूरे देश के लिए निष्ठा के साथ उसे संपूर्ण प्रगति के पथ पर लेके चलते हैं। प्लीज आप सभी प्लीज के लिए पोजीशन ले लें। Now, we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the citizen and individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November, humbly adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Thank you. All of you are requested to have your seat. Now, it's the last of our program, and in the last I would like to call our principal sir for vote of thanks before you. I would like to call our principal sir for vote of thanks before you. Thank you. Thank you, sir. I'm really thankful to everyone, and I really thankful to the Aryan sir, those who have conducting these types of the programs. And I really thankful to you all children, those who have the show the great passions among us. Because as you all know, we have already getting late, but you have to showing your great passions, and our teachers have also showing the great passions and contribute to us. So I really thankful to everyone, and I hope coming of the day we have to organize this function in a huge facilities and all types of the things. Those have to be missing today. Okay, now that's all. Thank you.